गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्बर ट्यूटोरियल से। और आज हम मोशन चैप्टर के अंदर में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज द पार्ट ऑफ थ्योरी एंड ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड। नाउ आई हैव टू क्लोज दिस चैप्टर बाय डूइंग सम क्वेश्चंस एट द एंड। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने इससे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको वन बाय वन कंक्लूड करता हूं। देखिए, अ कार इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। लेट मी ड्रॉ डायग्राम। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कार, बट आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस इज अ कार, this is a car and the initial velocity is given, it means u is given 25 meter per second. It's 25 meter per second and it is moving continuously for 10 seconds. 10 seconds and the acceleration is given also 2 meter per second square. So we have to find the velocity of car after 10 seconds. It means we have to find the value of v. Okay, so first of all let me check the video quality, then I will start. Okay, sure, everything is clear. There is little bit light, a circle of light due to my stand, but that is not an issue. It is clear. I have seen. Now I have three things. U is given 25 meter per second. A is given 2 meter per second square and T is given 10 seconds. Now what we have to do, we have a formula in which we can relate V with A, U and T. And what is the formula? It is the first law of motion, V equal to U plus AT. If we put the value of U 25 A 2 into 10, so we will solve it. It is 25 plus 20, it equal to 45 meter per second. So the velocity of car after 10 seconds with an acceleration of 2 meter per second square will be what? It will be 45 meter per second. This V is called the final velocity of the car. Final velocity. And I have told you earlier what is final velocity. So final velocity is the velocity of any vehicle or car or body after t seconds or t time. So after t equal to 10 seconds, whatever the velocity we are getting according to this question, that is called a final velocity. So I hope this topic is clear to you. And we will do some more questions. Next time I need not to write this whole sentence. Only I'll give you the values and you have to solve. And I'll also solve to make it more and more clear. So I'm going to rub this, and after that I will do a next question, and that question is related to retardation. Let me rub this. Whatever I have told you earlier, yesterday I have cleared you all the formulas. So I hope if you have just remembered once, so there is not going to be create any kind of problem in your mind regarding these questions. Okay, let us suppose a question I am telling you. Suppose question I am writing here. A car has an initial velocity of 25 meter per second and it has a continuous retardation. Retardation is given with minus sign, 2 meter per second square. So after time t equal to 25 seconds, okay, we have to calculate what is the distance covered by the car. आप ये समझ लीजिए कि एक कार है जो इस वक्त 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अगर आगे ट्रैफिक आ गया
ट्रैफिक आ गया और उसका एक्सीलरेशन घटता जा रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज positive 2 meter per second square means it is going to be accelerated and -2 meter per second square is showing that it is going to be deaccelerated or retarded. ये स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। ये कहानी चली 25 सेकेंड्स के लिए। तो आपको बताना है ये कार जब तक यहां पहुंचेगी वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी, ये डी। तो मुझे पता है S is called the displacement, D is called the distance, but S is called the displacement. We are talking about the velocities, so we have to take in consideration the displacement, not distance. So I can rub this. So this is called displacement. So S equal to, so we have a formula we can with the help of which we can correlate this U, A and T and S. S equal to UT plus half AT square. So what is the value of S? We have to calculate. What is U? 25. What is time? 25 seconds plus half into what is the value of A? We have to put -2 if it is given retardation. And what is T? 25 into 25, half AT square. We have to solve this. So let me solve. This is 25 into 25, 625. This is -1 and this is -625. Okay, so displacement will be around 0. If they will ask about the distance, so distance will come how much? So then we need not to take this acceleration negative. We will take this as a positive. So 625 plus 625, it will be around 1250 for distance. For distance, 1250. 1250 will be what? The distance. So you have to keep in mind what you have to calculate. You have to calculate displacement or distance. So displacement will be 0 and distance will be 1250 meter. Okay, sure. I hope this is clear to you. All the concepts of distance and displacement has been cleared with this formula. तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझ करके क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, हो सकता है गाड़ी सर्कल में घूम रही हो तो वो भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। हो सकता है गाड़ी शुरू में यहां से यहां गई हो फिर नीचे चली आई हो तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहां से आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और यहां से नेगेटिव। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सॉरी, मैंने शायद ये गलत बता दिया है। 1 मिनट में बता देता हूं आपको, रुक जाइए, वेट कर लें। देखिए ऐसे, देखिए सर्कल तो मैंने आपको ठीक बताया था। लेट मी रब दिस, तो मैं आपको फिर आगे बता देता हूं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो। देखिए हो सकता है कि ऐसे ग्राफ बना हो। समझिए, ग्राफ में वेलोसिटी है, ये टाइम है, ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर गया हो तो ये तो एक्सिस आपका 0,0 है, ये है -10 और ग्राफ गया हो यहां तक। तो ये एरिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये टाइम मान लीजिए कि ये 2 सेकेंड्स है, ये 4 सेकेंड्स है, ये भी -10 है, ये भी +10 है। तो इनका एरिया हाफ 2 से 4 हाफ बेस इंटू 10 और इसका हाफ बेस इंटू -10, दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा? 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। आप देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है एक फॉर्मूले पे, और सिर्फ आप सीखते चलें और वॉट एवर द क्वेश्चंस यू हैव इन योर बुक यू हैव टू सॉल्व दैट ओनली। तो अब मैं देखिए आपको दिखाता हूं क्वेश्चन अगला। सिर्फ आपको एकदम जो चीजें लिखी हुई सिर्फ उसी पे आपको दिमाग लगाना है, बहुत एक्स्ट्रा में आपको नहीं चलना है। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा। एक्चुअली आई हैव टू टेक दिस
Okay, this is the graph. Wait for a second, friends. This is position time graph. Position time graph. This is called displacement time graph. अब आपको ये बताना है, देख के आप बताइए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप देखें ए जो है विच इज फास्टर, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज फास्टर, कौन बहुत तेज चल रहा है, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं देखूंगा किसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप हमेशा नापते हैं एक्स एक्सिस से, इनका छोटा है सी का, बी का भी छोटा वो छोटा है, लेकिन ए का स्लोप बहुत बड़ा एक्स एक्सिस, दिख रहे हैं, ए का स्लोप बहुत ज्यादा है ना। अगर यहां मैं एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे पैरेलल, तो वो छोटा एंगल है, अगर यहां मैं ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस, वो छोटा एंगल, यहां देखिए कितना बड़ा है, तो इसलिए विच इज फास्टर, तो आप कहेंगे सर ए बहुत तेज गया। एक और तरीका है देखने का, कैसे देखेंगे आप, अगर ये टाइम यहां पर 10 सेकेंड है, तो ये मान लीजिए एक पॉइंट हमने लिया यहां पर, ऐसे खींच लिया, मान लीजिए पॉइंट, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, तो 10 सेकेंड के अंदर में ये तो 20 पे ही पहुंचा, ये 30 पे, लेकिन ये कितने पहुंचा 40 पे। तो देख सकते हैं टाइम तो कांस्टेंट कर दिया हमने देख लिया कौन सबसे ज्यादा दूरी तय कर लिया, तो हमने पाया कि ए जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखें आप, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ग्राफ के रिलेटेड था। एक वीडियो मैं इसके बाद और शूट करूंगा आपके लिए, ये मैंने वीडियो थोड़ी शॉर्ट शूट की है, कुछ और क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में उसे भी आप देखें और समझें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।